Good morning, my dear students. Have a nice day. Standard 4th, subject English. Myself, Miss Alima Sheikh, your English teacher. So students, as you know, in the previous lecture I had explained you chapter number 6. It's only a matter of practice. Right students? In the previous lecture I had explained you chapter number 6. It's only a matter of practice. In this lesson we had completed the very first part, means half story, right? And the remaining half story today I am going to explain you. Students, जैसे कि आप जानते हो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इस कहानी इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये जो लेसन है इसकी कहानी मैंने आपको हाफ एक्सप्लेन की थी, राइट? और आज मैं जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रह गया है, वो पार्ट मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी, राइट? So students, now I request to everyone to open your English Bal Bharati textbook. In that you have to open the chapter number 6. It's only a matter of practice. It means that you have to open the page number 12. Students, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ओपन करें. उसमें आपको ओपन करना है पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 6. It's only a matter of practice, right? So students, I hope everyone had opened the page number 12, right? Chapter number 6, it's only a matter of practice. So students, now we will start with the 5th paragraph. As you can see, please don't get angry. From there we are going to start today's lecture, right? But students, before I start with the 5th paragraph, first of all I'm going to give you a short recap which I had already explained you in the previous lecture, right? Students, जैसे कि आप जानते हो कि आज का जो लेक्चर है वो हमारा हाफ पार्ट जो रिमेनिंग है वो एक्सप्लेन होगा, राइट? और जो हाफ पार्ट जो एक्सप्लेन करना बाकी है स्टूडेंट्स, वो है पैराग्राफ नंबर 5. मीन्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लीज़ डोंट गेट एंग्री से स्टार्ट होगा. बट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दूंगी जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. मीन्स जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हाफ स्टोरी, उसका मैं छोटा सा रिकैप दूंगी. उसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो हियर चैप्टर नंबर 6, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. नाउ long ago in far away China there lived an archer called Chen Yoji. बहुत समय की बात है, चेन योजी करके एक व्यक्ति था जो चाइना में रहता था. और वो कौन था? एक आर्चर था. आर्चर मीन्स someone who shoots arrows from a bow, right students? आर्चर का मतलब है, सो स्टूडेंट्स, आर्चर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो धनुष से बाण चलाता है, राइट? जो धनुष से बाण चलाने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं आर्चर. तो यहाँ पर आर्चर कौन है? चेन योजी, वो एक आर्चर है. So students, by looking to the picture, yes, this man name is Chen Yoji, right students?
and he is an archer. He lived in China. Now, long ago. बहुत समय पहले की बात है. Student, skilled means experience, good at something. Skilled का मतलब है कला, किसी चीज में माहिर हम कह सकते हैं. Archer means someone who shoots arrow from a bow. As I told you, आर्चर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो धनुष से बाण चलाता है. Feats. Students, feats means achievements that requires a lot of skill, strength, etc. Feats का मतलब है एक कलाकार जिसने बहुत मेहनत किया है और वो अचीव हो चुका है, राइट, वो कामयाब हो चुका है, राइट. उसने बहुत सारा परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, उसके बाद वो चीज़ वो सीख गया, वो कला में वो माहिर हो गया, राइट. So here he could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. So here this line says us that the chain yogi can hit the target. Precisely means exactly at the center even when it was placed in a long distance. Then also chain yogi can hit the target exactly at the middle of the point. Got it students? जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि चेन योजी उनका जो टारगेट है वो एग्जैक्टली एकदम मिडल में ही लगता है, चाहे फिर वो हम कितने भी डिस्टेंस में रखें, वो एग्जैक्टली मिडल में ही उनका जो बाण है वो मिडल में ही एग्जैक्ट लगेगा, राइट. क्योंकि वो इतने उनके अंदर क्या है, कला है, स्किल्ड है. गॉट इट? फॉर दैट रीजन द चेन योजी इज कॉल्ड आर्चरी, right? Now, as I told you, he could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. Now, students, as I told you, precisely means what? Exactly. At the center. Precisely means exactly. Now, he liked to show off his skill to the admiring crowds that gather around him. So Chain Yoji liked to show off because he knew how to what? Shoot the arrow from the bow, right? He know the target, how to hit. One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at a distance. Now one day what happened, when Chain Yoji was practicing his skill in front of all the peoples, admiring means the peoples who gathered to see the Chain Yoji archery, right? So that time what happened, Chain Yoji has noticed that one old man is standing backside, right? जैसे कि स्टूडेंट्स, एक दिन की बात है, चेन योजी प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी कला की, राइट. तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान बहुत पीछे खड़ा है. द मैन वॉज कैरिंग गॉड्स ऑफ ऑयल that were hanging from a long can on his shoulder. So backside the old man is standing, right? The old man was carrying gourds of oil. Students, gourds means a container made from dried large fruit with a hard skin that were hanging on his shoulder, right students? So students, as I told you, gourds means container made from a dried large fruit with a hard skin. So students, जैसे कि यहाँ पे चेन योजी ने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान बहुत पीछे खड़ा था और उसने अपने कंधे पर क्या लिया था, एक गॉड्स लिया था. गॉड्स मीन्स क्या, जैसे एग्जाम्पल कोकोनट, आपने देखा होगा कोकोनट कैसे होता है, राउंड शेप में,
तो वो एक कंटेनर टाइप रहता है, राइट। तो सेम वे गॉड्स भी एक कंटेनर टाइप था, उसके अंदर ऑयल रखा गया था। क्या रखा गया था? ऑयल। और वो 2 कैन आप देख सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। इन दिस पिक्चर यू कैन सी, राइट, दिस ओल्ड मैन इज कैरिंग द कंटेनर इन हिज शोल्डर, राइट। On the shoulder he is carrying the container, and the container is made up of gourds, right, and in that there is a oil. Now all the other peoples were clapping their hands and praising चेन योजी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब चेन योजी अपने प्रदर्शन कर रहे थे, मीन्स वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट। और किससे प्रैक्टिस कर रहे थे? धनुष और बाण से, राइट। धनुष से बाण चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। उस समय वहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे वो सब क्लैप कर रहे थे। क्लैप मीन्स ताली बजा रहे थे, प्रेज कर रहे थे। प्रेजिंग मतलब उनकी वाहवाही कर रहे थे, राइट। किसकी? चेन योजी की, राइट। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट, ही neither clapped nor uttered words of praise. So here the old man was standing quietly. He is not saying anything only, as well as he is not clapping, not cheering to the chain yogi like that. जैसे कि यहाँ पर एक जो बुजुर्ग इंसान था, उसने चेन योजी के लिए क्लैप भी नहीं किया, उसे प्रेज भी नहीं किया। प्रेज मीन्स उसकी वाहवाही भी नहीं किया। ना वाई, क्यों उसने ऐसे नहीं किया? लेट्स सी। He just stood there nodding his head and said, "It's just a matter of practice." जैसे कि यहाँ पर ये बुजुर्ग इंसान खड़े हो गया। स्टोड मीन्स खड़े हो जाना। They are nodding his head. उसने अपने गर्दन को हिलाया और क्या कहा? It's just a matter of practice. ये बुजुर्ग इंसान ने कहा कि ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। जो चेन योजी ने प्रैक्टिस किया है, इसीलिए वो इतना स्मूथली क्या कर रहा है? धनुष से बाण चला रहा है, वो भी मिडल ऑफ द टारगेट। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है। ऐसे किसने कहा? बुजुर्ग इंसान ने कहा। नाउ चेन योजी वॉज annoyed. स्टूडेंट्स, annoyed मीन्स एंग्री। चेन योजी गुस्सा हो गए। Was annoyed. Annoyed means angry. Are you an archer yourself? Do you think anyone can do what I can do with my bow and arrow? So here the chain yogi is saying to the old man, Dad, are you an archer yourself? क्या तुम एक आर्चर हो? ऐसे किसने कहा? चेन योगी ने ओल्ड मैन से कहा। Do you think anyone can do? और तुम ये कह रहे हो कि ये कोई भी कर सकता है? What I can do with my bow and arrow, जैसे मैं मेरे धनुष से बाण चला रहा हूँ, वैसे कोई भी चला सकता है। क्या तुम एक आर्चर हो? ऐसे किसने कहा? चेन योजी ने बुजुर्ग इंसान से कहा। नाउ द नेक्स्ट। Annoyed means, students, as I told you, angry. Chain yogi was angry. Now let's see the next line. No sir, the old man replied, I am not an archer. So here the old man said, means the old man replied that, no sir, I am not an archer. जैसे कि यहाँ पर बुजुर्ग इंसान ने चेन योजी से कहा कि नहीं सर, मैं कोई आर्चर नहीं हूँ। And I don't doubt your skill. All I said was everything's a matter of practice. So here the old man is saying to the chain yogi that I don't doubt of your skill. मैं आपकी कला की डाउट नहीं कर रहा हूँ। आपकी कला का मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ कि आपको नहीं आता, आपको बहुत अच्छे से आता है। All I said was, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, everything's a matter of practice. हम ये इतने अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है।
ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है. Like that, the old man said to the Chen Yoji. Right, students? Then Chen Yoji became very angry. Afterward, hearing this, again the Chen Yoji became very angry. Chen Yoji को और गुस्सा आया. What do you know that you pass such thoughtless comments on other people? Who are you? So here Chen Yoji said to the old man that तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? Thoughtless comment means, students, a statement made without thinking. बिना सोचे समझे कुछ कहना, उसे कहते हैं thoughtless comments. So here Chen Yoji said to the old man that how you can pass such a statement without thinking. Like that, the Chen Yoji said to the old man, who are you? तुम कौन हो जो तुम ऐसे राय दे रहे हो अपनी? Like that, Chen Yoji said to the old man. Now the next. So students, I hope now I had explained you the recap. I had given you short recap which I had explained you in the previous lecture. स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट? पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द 5th पैराग्राफ. तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी हमारा सेकेंड पार्ट, ये कहानी का दूसरा भाग जो 5th पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स? सो प्लीज डोंट गेट एंग्री सर, आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव. Sir, I am an oil sailor, as you must have guessed from the gods. Every day I fill these gourds with oil and sell them. Over the years, I have achieved some skill in filling the gourds. If you allow, I will show it to you. Now students, this 5th paragraph indicates that प्लीज़ डोंट गेट एंग्री सर. जैसे कि यहाँ पे बुज़ुर्ग इंसान ने चेन योजी से कहा कि आप गुस्सा मत हो. प्लीज़ डोंट गेट एंग्री सर. आई एम एन ऑयल सेलर. मैं क्या करता हूँ? मैं तेल बेचता हूँ. ऐसे कौन कह रहा है? बुज़ुर्ग इंसान. किससे कह रहा है? चेन योजी से. एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द गॉड्स. तो यहाँ पर वो बोल रहा है जस्ट कि मैंने जस्ट गेस किया और मैं एक ऑयल बेचता हूँ, राइट? फ्रॉम द गॉड्स. गॉड्स स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, अ कंटेनर मेड फ्रॉम अ ड्राइड लार्ज फ्रूट विथ अ हार्ड स्किन. जैसे कोकोनट, नारियल कैसे होता है जस्ट, वो भी एक कंटेनर जैसा दिखता है, राइट? तो सेम वे उसने एक अपने पास गॉड्स रखा है, उसके अंदर क्या है? ऑयल है, और वो एक ऑयल सेलर है. कौन? ये बुजुर्ग इंसान. Guest means to form an statement. Every day I fill this gourd with oil and sell them. So here the old man is saying to the Chen Yoji that every day, हर रोज, I fill this gourd with oil and sell them. जैसे कि ये बुजुर्ग इंसान ने चेन योजी से कहा कि मैं ये जो गॉड है, मीन्स ये जो कंटेनर है, मैं इसमें रोज़ ऑयल डालता हूँ और मैं उसे बेचता हूँ. अब ये बुजुर्ग इंसान ने ऐसे क्यों कहा? लेट्स सी. Over the years, I have achieved some skill in filling the gourds. If you allow, I will show it to you. So here the old man is saying to the Chen Yoji that over the year I am selling this oil. I have achieved some skill. जैसे कि यहाँ पर ये बुजुर्ग इंसान ने चेन योजी से कहा कि मैं साल से बेच रहा हूँ, कितने साल से मैं ये तेल बेच रहा हूँ, तो मैंने भी कुछ अचीव किया है, मैंने भी कुछ कला सीखा है. अब वो मैंने क्या कला सीखा है? इन फीलिंग द गॉड्स.
ये जो गॉड है, ये जो कंटेनर है जो फ्रूट का बना हुआ है, राइट, जैसे कोकोनट होता है एग्जाम्पल, तो मैं इसमें तेल भरता हूँ और ये मैं कितने सालों से कर रहा हूँ, तो मैंने भी कुछ कला सीखा है। इफ़ यू अलाउ आई विल शो इट टू यू। अगर आप इजाज़त दो तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या सीखा है, मैंने कौन सी कला सीखी है। ऐसे कौन कह रहा है? बुजुर्ग इंसान। किससे कह रहा है? चेन योजी से। So students, now the last paragraph. Grohl changed Yoji. Everybody was curious to see what would happen next. So here students, the chain Yoji has said, जैसे कि chain Yoji ने कहा, okay, ऐसे sound देके बोला, everybody was. So as I told you, there are so many crowd is there, right? वहाँ पर बहुत गर्दी थी, crowd that gather around him. जैसे वहाँ पर चेन योजी के अराउंड में बहुत सारे पीपल्स लोग गैदर्ड हुए थे, एक साथ आए थे। उसका क्या देखने के लिए? उसका स्किल देखने के लिए। स्किल मीन्स कला, किसकी? चेन योजी की, राइट। तो वहाँ पर जितने लोग खड़े थे वो सारे लोग ने चेन योजी और ओल्ड मैन का कन्वर्सेशन सुना। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। तो वहाँ पर जितने लोग खड़े थे उन्होंने चेन योजी और बुज़ुर्ग इंसान की सारी बातें सुनी। तो एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। तो वहाँ पर जितने लोग थे वो सब लोग एक्साइटेड थे कि अभी आगे क्या होगा। ऐसे करके वो सब एक्साइटेड थे कि आगे क्या होगा ये देखने के लिए। So students, now we had completed the page number 12. Now everyone just move to the next page. So here page number 13. Right students, now I am going to explain you the page number 13 part. Patiently the old man sat down. An empty gourd on the ground. So patiently जो बुजुर्ग इंसान था वो बहुत ही आराम से नीचे बैठ गया। पेशेंटली मीन्स बहुत आराम से, काम दिल, मतलब गुस्सा नहीं, राइट, एकदम आराम से वो नीचे बैठ गया। द ओल्ड मैन सेट डाउन। एन एम्प्टी गॉड ऑन द ग्राउंड, जो वो खाली कंटेनर था, राइट, जो फ्रूट के स्किन से बना था, राइट, जैसे एग्जांपल कोकोनट। तो जैसे वो कंटेनर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो उसने वो ओल्ड मैन ने उसको ग्राउंड पे रख दिया। एम्प्टी गॉड मीन्स उसके अंदर ऑयल नहीं था, वो खाली था। वो जो कंटेनर है वो खाली था और जो ओल्ड मैन है उसने उसको ज़मीन में रख दिया। देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गॉड। तो उसके बाद जो बुजुर्ग इंसान ने क्या किया, जैसे कि आप देख सकते हो, एक कॉइन जैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स 1 रुपीज़ का कॉइन, राइट, ऐसे कॉइन था, उसने उस जो कंटेनर था उसके ऊपर रख दिया, जहाँ पे उसका माउथ होता है ना, मीन्स जहाँ से हम लोग ऑयल डाल सकते हैं, राइट। तो उसके ऊपर उसने वो कॉइन को रख दिया, वो सिक्के को उसके ऊपर रख दिया। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इन दोज डेज स्मॉल कॉइन हैड अ लिटिल होल एट द सेंटर। स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे द ओल्डन डेज, if you observe in the coin there is a little hole at the center. स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे पुराने ज़माने में तो जो कॉइन होता था उसमें बीच में एक होल होता था। स्टूडेंट्स जो कॉइन होते थे, एग्जांपल 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, राइट, तो पुराने ज़माने में जो कॉइन था उसमें मिडल में क्या होता था? होल होता था। इन द सेंटर, एट द सेंटर देयर इज़ अ होल, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये पुराना कॉइन है, right? Then the old man stood up, took some oil in his ladle and began to pour oil into the gourd from a height. Now students, this line tells us that the old man stood up means जो बुजुर्ग इंसान था वो खड़ा हो गया। And what he has done, he took some oil in his ladle
जैसे कि स्टूडेंट्स वो जो बुजुर्ग इंसान था वो खड़ा हो गया और उसने जो स्पून आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, कैन यू सी, लैडल मीन्स एक स्पून जिसमें से कटोरी टाइप होती है, राइट। तो वो उसमें ऑयल डाला, राइट, एंड बिगैन टू पोर ऑयल इनटू द गॉड फ्रॉम अ हाइट, और उसने बहुत हाइट ऊंचाई से उस तेल को उस गॉड में डाला। पोर मीन्स स्टूडेंट्स, पोर मीन्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बुजुर्ग इंसान है वो तेल ऊपर से वो गॉड में डाल रहा है, तो इसे हम कहते हैं पोर। So students, can you see this picture? Yes. Now, so here the old man is pouring oil into the god from the height. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बुजुर्ग इंसान पोर कर रहा है, मीन्स वो तेल को वो इतने हाइट से, ऊंचाई से वो गॉड के अंदर डाल रहा है, राइट। और गॉड मीन्स क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था, एक कंटेनर है जो किससे बना है, फ्रूट के स्किन से बना है। जैसे एग्जाम्पल कोकोनट, राइट, नारियल, वो कैसे कड़क होता है और वो कैसे कंटेनर जैसा दिखता है, तो सेम वे उसको हम कहते हैं गॉड, राइट। नाउ ladle. Now students, what is the meaning of ladle? As I told you, a long handled spoon having a deep bowl for serving liquids. मैंने आपको कहा था स्टूडेंट, जैसे कि एक स्पून है, चम्मच, जैसे कटोरी टाइप चम्मच होता है, राइट, तो उसमें से वो जस्ट पोर कर रहा था ऑयल को, राइट। Now the oil went straight into the god through the hole in the coin. So students, as I told you, in the olden days the coins have, in the middle there is a hole, in the coin there is a hole, right. So as you know, the coin is kept over the god mouth. जैसे कि यहाँ पर वो जो कंटेनर है उसके माउथ के ऊपर क्या रखा है, कॉइन रखा है, कॉइन के मिडल में क्या है, होल। तो जो वो ऑयल है वो स्ट्रेट वो होल में जस्ट डाल रहा था, कौन, वो ओल्ड मैन, राइट। When the old man had finished filling up the god, he lifted up the coin. So when the old man had finished filling the god, जैसे ही ये बुजुर्ग इंसान ने वो ऑयल वो गॉड में डाला, तो जब वो गॉड फिल हो गया था, फिल मीन्स भर गया था, तो उसके बाद उसने क्या किया, वो जो कॉइन है वो उसने उठा लिया। ही लिफ्टेड अप द कॉइन मीन्स उसने उस कॉइन को उठा लिया। देन आफ्टरवर्ड व्हाट हैपेंड, not a trace of oil could be seen on it. Students, जो ट्रेस मीन्स व्हाट, जैसे थोड़ा भी ऑयल उस कंटेनर में नहीं लगा था, ना ही उस कॉइन में लगा था, मीन्स एक भी ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इज नॉट देयर ऑन द कंटेनर एज वेल एज ऑन द कॉइन। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल, थोड़ा सा भी ऑयल ना ही वो कंटेनर में लगा था और ना ही वो कॉइन में। Understood students? The people watching it were speechless with wonder. So the people, the crowd of the people, right? They were speechless by looking this all things. जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हो वहाँ पर बहुत ही भीड़ लगी थी, राइट, बहुत पब्लिक लोग खड़े थे। जब चेन योजी और वो ओल्ड मैन का कन्वर्जेशन हो रहा था तो वो लोग सुन रहे थे, मीन्स जब चेन योजी और जो बुज़ुर्ग इंसान है वो लोग बात कर रहे थे तो सारे जितने पीपल्स वहाँ पर खड़े थे वो लोग सुन रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि जो ओल्ड मैन है इसने अपना स्किल बताया, मीन्स इसने अपनी कला बताया, तो सब लोग क्या हो गए, स्पीचलेस हो गए, सब लोग वंडर हो गए। स्पीचलेस मीन्स कुछ वो लोग आंसर ही नहीं दे पाए, वो लोग सरप्राइज्ड हो गए देखकर। So students, speechless means unable to speak due to surprise or wonder, as I told you. Now,
But the old man only smiled. As I said, there's nothing special about it. जैसे कि ये बुजुर्ग इंसान सिर्फ थोड़ा सा हंस रहा था और उसने कहा कि मैंने अभी कहा था कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, जो मैंने प्रैक्टिस किया है उसी की वजह से मैंने ये कला सीखा है, तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है. गॉट इट? एज आई सेड, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. कोई स्पेशल नहीं है, ये क्या है, मेरे रोज़ की प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं इतना परफेक्ट हूँ. But the old man only smiled as I said, there's nothing special about it. It's only a matter of practice, you see. So here the old man said that it is only because of my daily practice. Got it, students? जैसे कि यहाँ पर ये बुजुर्ग इंसान ने कहा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे में कला कैसे आई है कि मैंने रोज़ प्रैक्टिस किया है, इसीलिए मेरे अंदर ये कला है. So, Chen Yoji lost all his anger and annoyance. Students, Chen Yoji has lost his anger means जो चेन योजी था उसका पूरा गुस्सा और जो चिढ़ था वो नॉर्मल हो गया. Why? Because when he saw that the old man is also having one skill, जब उसने देखा कि ये जो ओल्ड मैन है इसके अंदर भी एक कला है और ये कला भी स्पेशल है, डिफरेंट है, तो उसका पूरा गुस्सा वो ठंडा हो गया. क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज्ड हो गया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. राइट? He just gave a short smile and said, "You have taught me something important today." तो जैसे कि यहाँ पर चेन योजी ने एक छोटी सी स्माइल दी और कहा कि आज तुमने मुझे कुछ इम्पोर्टेंट सिखाया है. ऐसे कौन कह रहा है? चेन योजी. किसे कह रहा है? बुजुर्ग इंसान से. गॉट इट? After that, Chen Yoji never show off or boasted about his skill as an archer. So, afterward what happened? The Chen Yoji realized that from today onwards I am not going to show off my skill. वो अपने स्किल की शो ऑफ नहीं करता था. राइट? कि मैं आर्चर हूँ, मुझे तीर चलाना आता है, मुझे तीर कमान चलाना आता है, वो भी इतने पॉइंटेड में, इतने मिडल पॉइंट में, टारगेट मेरा इतना अच्छा है, ऐसे उसने शो ऑफ नहीं किया. क्यों? बिकॉज ही रियलाइज दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस. दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. सो चेन योजी रियलाइज्ड इन द एंड ऑफ द स्टोरी. गॉट इट, स्टूडेंट्स? So students, the moral of the story is practice makes a man perfect, as I said you before, right? हमने यहाँ पर क्या सीखा इस कहानी में कि अगर हम कुछ चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं. Got it, students? So students, I hope everyone understood the chapter number 6. It's only a matter of practice. Students, if you have any doubt, you can call me or WhatsApp me on my personal number. So students, thank you for watching the video.